Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, chemical effects of electric current. Warm-up exercise. An electric circuit is the closed path followed by the electric current to flow from the source to the sink, that is when we connect the two ends of a dry cell to a torch bulb. Using connecting wires, an electric circuit is made. The circuit is called a complete or closed circuit. If the bulb fails to glow because of dead cell in use or a broken wire, the electric circuit is said to be broken or called open circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, यानी कि जब हम दो एंड्स को कनेक्ट करते हैं ड्राई सेल के, जो आपका सोर्स है टॉर्च बल्ब से, टॉर्च बल्ब सिंक कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपका बनता है. अच्छा, सर्किट को कंप्लीट क्लोज्ड कहा जाता है जब उसमें करंट आपका फ्लो होगा, राइट. और अगर आपका करंट उसमें फ्लो नहीं होता, यानी आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, तो सर्किट इसका मतलब ब्रोकन है या फिर ओपन सर्किट है. Conductivity. The materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductors of electricity. You know that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, और जो अलाउ नहीं करते वो आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं. जैसे कि आपके मेटल्स जो आपके गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि रबर प्लास्टिक आपके पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज अ टेस्टर. A conduction tester is a device used to determine whether a substance is a good or poor conductor of electricity. Conduction tester using a torch bulb. A simple conduction tester has an electric cell and a torch bulb. One terminal of the cell is connected to one terminal of the bulb by a wire. The other terminal of the cell and bulb have wires which can be brought in contact with materials to test whether they are good or poor conductors of electricity. If the material is a good conductor, the bulb glows, and if it is a poor conductor, the bulb does not glow. देखिए, एक सिंपल कंडक्शन टेस्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक सेल होता है और एक टॉर्च बल्ब होता है. तो एक जो टर्मिनल होता है सेल का, उसको कनेक्ट कर देते हैं हम बल्ब के एक टर्मिनल से वायर से. फिर जो दूसरा टर्मिनल होता है सेल का एंड बल्ब में वायर्स होते हैं जिनको हम कांटेक्ट में लेके आते हैं जिस भी मटेरियल में हमें उनको टेस्ट करना है कि उससे, और टेस्ट करके पता चलेगा कि ये कंडक्टर है, गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर है. अगर मटेरियल गुड कंडक्टर होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और पुअर कंडक्टर होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. कंडक्टर टेस्टर यूजिंग LED. Sometimes the current flowing through the circuit may be too weak and the filament of the bulb may not get sufficiently heated to make it glow. Then instead of a torch bulb, an LED can be used in the circuit. LED glows even when a weak current flows in the circuit. कई बार क्या होता है कि जैसे सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो इससे जो बल्ब जो है उसका फिलामेंट जो है उसको वो सफिशिएंटली हीट नहीं हो पाता. सफिशिएंटली हीट नहीं होगा तो ग्लो कैसे करेगा? तो तब टॉर्च बल्ब की जगह हम LED यूज़ करते हैं. तो LED जो है आपका वीक करंट भी होगा ना सर्किट में, वो तब भी आपके ग्लो करते हैं. Conductor testing using compass. If a magnetic compass is kept near a wire and current flows through the wire, the magnetic needle gets deflected. So we can use a magnetic compass instead of a torch bulb or LED in the circuit. The magnetic needle gets deflected even if a weak current flows in the circuit. देखिए, अगर मैग्नेटिक कंपास को आप वायर के पास रखेंगे और करंट आपका फ्लो कर रहा है वायर में, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट. तो हम मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर सकते हैं टॉर्च बल्ब या LED की जगह पे. तो मैग्नेटिक, अगर आपका वीक करंट भी फ्लो हो रहा है ना सर्किट में, तब भी आपका जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी. एक्टिविटी 1. Make a small circuit using a torch bulb, 2 dry cells and connecting wires without a switch. Leave the circuit open at one point as shown in figure. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि सर्किट आपका ओपन है. Place the different solutions in a beaker and immerse the ends of connecting wires in the solution. Make sure to wash the beaker well with distilled water every time you use the beaker for a different solution. Observe whether the bulb glows or not and record your observations. अब आपको देखिए डिफरेंट मटेरियल्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि वो गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर है. तो ऑफकोर्स अगर आपका बल्ब ग्लो करता है तो आपका वो गुड कंडक्टर है, राइट. बट यहाँ पे हमने किसको यूज़ किया है? कंपास नीडल को, जो कि डिफ्लेक्शन शो करेगा. अगर डिफ्लेक्शन शो करेगा मीन्स गुड कंडक्टर है, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो मीन्स आपका बैड कंडक्टर है. जैसे कि लेमन जूस की बात करें तो उसने डिफ्लेक्शन शो किया, यस. अगर शो किया है तो गुड कंडक्टर है, और बाकी आप इनको टेस्ट कर सकते हैं. Chemical effects of current. In 1800, a British chemist, William Nicholson, had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced.
Oxygen bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles formed on the other electrode. एक ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, उन्होंने क्या शो किया कि अगर हम इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज करें वाटर में और फिर करंट को पास करें तो बबल्स बनते हैं ऑक्सीजन गैस के और हाइड्रोजन गैस के। अब जो ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनते हैं वो आपके बनते हैं उस इलेक्ट्रोड पे जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, एंड हाइड्रोजन बबल्स जो हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे बनते हैं। The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reactions. As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrodes. Deposits of metal may be seen on the electrodes. Changes of color of solution may occur. The reaction would depend on what solution and electrodes are used. There are some of the chemical effects of the electric current. तो जो पैसेज हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टिंग सोल्यूशन में, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो बबल्स होते हैं गैसेस के वो इलेक्ट्रोड्स पे बनते हैं। और जो मेटल्स का डिपॉजिट भी है वो भी देखा जा सकता है इलेक्ट्रोड्स में। कलर जो है सोल्यूशन का वो भी चेंज होता है। तो रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि क्या सोल्यूशन है और कौन से इलेक्ट्रोड्स आपके यूज़ किए गए हैं। The passage of an electric current through a liquid causes chemical changes. This process is known as electrolysis. Conduction is possible only in those liquids which are at least partly dissociated into oppositely charged ions. Such liquids are called electrolytes. तो देखिए जो पैसेज है इलेक्ट्रिक करंट का किसी भी लिक्विड में, उसकी वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं, तो ये प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। कंडक्शन पॉसिबल है उन्हीं लिक्विड्स में जो आपके एटलीस्ट पार्टली डिसोसिएटेड होते हैं इनटू चार्ज आयन, जैसे कि लिक्विड्स आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ मेनी ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लिक्विड। In electrolysis, the whole arrangement of electrodes, electrolyte in the vessel containing them is called a voltmeter. Electrolysis is a decomposition of liquid compound by passing electric current through liquid called electrolyte, salt water, copper sulfate, sulfuric acid. To make electrolysis happen, there are two conductors used, cathode and anode. अच्छा, आपकी इलेक्ट्रोलिसिस जो आपका पूरा अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोड्स का, इलेक्ट्रोलाइट का एंड द वेसल कंटेनिंग देम, उसे कहा जाता है वोल्टमीटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ लिक्विड का, लिक्विड कंपाउंड का, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा लिक्विड के थ्रू, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड। एंड इलेक्ट्रोलिसिस को हैपन करने के लिए वहाँ पे आपके दो कंडक्टर्स यूज होते हैं, कैथोड एंड एनोड। Electroplating. Electroplating uses the same principle as in electrolysis, just that a special electrolyted copper sulfate are used. The process of electroplating, also referred to as electrode position, is fairly simple. Electroplating में आपका सेम प्रिंसिपल यूज होता है जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस में होता है, राइट। इसमें क्या होता है कि स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट आपके जैसे कि कॉपर सल्फेट को यूज़ किया जाता है। तो जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है काफ़ी सिंपल होता है। टू स्टार्ट, a negative charge is placed on the object that will be coated, which is done by passing electric current through it by connecting it to the negative terminal of the battery. The object is then immersed in a salt solution of the metal that will be used to plate the object. From there, it's simply a matter of attraction. The metallic ions of the salt are positively charged and are thus attracted to the negatively charged object. Once they connect, the positively charged ions revert back to their metallic form again, and you have a newly electroplated object. अच्छा, इसको स्टार्ट करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज है उसको प्लेस किया जाता है ऑब्जेक्ट में जो कि आपका कोटेड होता है, और इसको किया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, और कनेक्ट कर दिया जाता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको सॉल्ट सोल्यूशन में इमर्ज किया जाएगा मेटल के, जो कि आपका यूज़ होगा टू प्लेट द ऑब्जेक्ट। वहाँ से ये आपका सिंपली एक मैटर ऑफ अट्रैक्शन है। जो मेटालिक आयंस होंगे सॉल्ट के वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और एक बार ये कनेक्ट हो जाते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो रिवर्ट बैक करते हैं उनके मेटालिक फॉर्म में, और उसके बाद न्यूली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट हमें मिल जाता है। Controlling the thickness of the electroplated object is generally achieved by altering the time the object spends in the salt solution. The longer it remains inside the bath, thicker the electroplated shell becomes. Of course, there must also be an adequate amount of metallic ions in the bath to continue coating the object. This is accomplished by keeping a strip of object used to coat at the positive terminal. Thus, as current passes, an equal amount of it is dissolved in the solution as ions as the amount coated over the object. Thus, the process goes on. The shape of the object will also have an effect on the thickness. Sharp corners will be plated thicker than recessed areas. This is due to the electric current in the bath and how it flows more densely around corners. The process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. अच्छा, जो electroplated की
जो थिकनेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम टाइम को अल्टर कर दें, मतलब जितना टाइम उसने सॉल्ट सोल्यूशन में उसको स्पेंड किया है, जितना टाइम वो बाद में रहेगा तो इलेक्ट्रोप्लेटेड जो शेल है वो उतनी ज़्यादा थिकर हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए आपको पता है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेटालिक आयंस बाद में होना चाहिए जिससे कि जो कोटिंग हुए ऑब्जेक्ट में वो कंटिन्यू रहे। तो इसको कैसे अकम्प्लिश किया जा सकता है कि हम एक स्ट्रिप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रखें टू कोट एट द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जैसे आपका करंट पास होगा, एक इक्वल अमाउंट ऑफ इसका जो डिसॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन में ऐसा आयंस, एंड जो अमाउंट जो है वो कोट हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा। तो जो शेप होता है ऑब्जेक्ट का उसका विल ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द थिकनेस, राइट। जो शार्प कॉर्नर्स होंगे वो आपके थिकर प्लेटेड हो जाएंगे देन रिसेस्ड एरियाज। तो ये किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, क्योंकि आपका जो बाद में इलेक्ट्रिक करंट है और कितना डेंसली आपका फ्लो कर रहा है अराउंड कॉर्नर्स। तो जो प्रोसेस है जिसमें एक डिजायर्ड मेटल की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है दूसरे मटेरियल पे बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस है ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Electroplating is a very useful process. It is widely used in industry for coating metals object with a thin layer of a different metals. The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lacks. तो देखिए इसे इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड को। इसमें एक थिन लेयर होती है, डिफरेंट डिपॉजिट कर दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है डिफरेंट मेटल में। तो जो लेयर होती है, जो मेटल आपका डिपॉजिट हुआ है उसकी कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट में नहीं वो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। Uses of electroplating. Electroplating is used in industry for coating and metal objects with a thin layer of a desired metal. Chromium has a shiny appearance and it does not corrode. Chromium plating is done on objects like bicycle parts, car parts, taps, gas burners, wheel rims, etc. Jewelry makers electroplate gold and silver on less expensive metals to give an appearance of gold or silver. Tin cans used for storing food are electroplated with tin over iron because tin is less reactive than iron and protects iron from corrosion. Iron objects are coated with zinc to protect it from corrosion. इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ किया जाता है जब देखिए हमें किसी भी जो मेटल ऑब्जेक्ट को कोट करना है एक थिन लेयर ऑफ ए डिजायर्ड मेटल से। जैसे क्रोमियम का एक शाइनी अपीयरेंस होता है तो ये कोरोड नहीं होता। क्रोमियम प्लेटिंग को की जाती है जैसे बाइसिकल के पार्ट्स हैं, कार के पार्ट्स हैं, टैप्स हैं। जो ज्वेलरी मेकर होते हैं वो क्या करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं किसी लेस एक्सपेंसिव मेटल्स में जिससे कि गोल्ड और सिल्वर का उनको अपीयरेंस मिलता है। टिन्स को यूज़ किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए और ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं विद टिन ओवर आयन, क्योंकि टिन आपका क्या होता है लेस रिएक्टिव होता है आपके आयन से एंड उसको आयन को कोरोजन से बचाता है। इसी तरह से आयन ऑब्जेक्ट्स को कोट किया जाता है जिंक के साथ ताकि वो कोरोजन से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। Notes for the chapter. The flow of charge through a conductor constitutes electric current. Some liquids are good conductors of electricity and some are poor conductors. The passage of an electric current through a conducting liquid causes chemical reactions. Electroplating is used in industry for coating metal objects with a thin layer of a desired metal. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।